हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। Yes, sir. Yeah. Okay, so again we communicate the same. Okay, so we were discussing about the TFTP protocol. Basically, it is a tribal file transfer protocol that doesn't have two types of connections for the communication, that is control in connection as well as data. Clear? So it doesn't have the separate communication path. So it is widely used by the device without permanent storage for copying an internal initial memory, that is image bootstrap from a remote server when the devices are powered on. Clear? So it doesn't have any kind of permanent storage. ठीक है, इसके पास कोई परमानेंट स्टोरेज नहीं है. ड्यू टू लैक ऑफ सिक्योरिटी फीचर द यूज ऑफ TFTP इज जनरली रिस्ट्रिक्टेड. तो सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से इसको हम लोग थोड़ा कम प्रिफर करते हैं. So TFTP uses the unreliable transport protocol, that is UDP for data transfer. जैसे कि FTP में हम लोग देख रहे थे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में जनरली TCP यूज हो रहा था, यहाँ पे हम लोग UDP यूज कर रहे हैं. ठीक है. So each TFTP message is carried in a separate UDP datagram. जो भी TFTP मैसेज होता है, ट्राइबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मैसेज, generally carried in a separate carry करता है. The first two byte of a TFTP message specify the type of messages. अब इसका रिप्रेजेंटेशन है कि जो पहली दो बाइट होती हैं मैसेज के अंदर, वो बताती हैं कि किस तरह का मैसेज है. दिस इज द टाइप ऑफ मैसेजेस which can be request to download a file. ठीक है, and request to upload a file. जो जनरली क्या रिप्रेजेंट करता है, जो हमने बताया आपको कि जो पहला मैसेज स्पेसिफाई करता है वो टाइप ऑफ मैसेज है, जो क्या बताता है कि which can be request to download a file and request to upload a file, a data message or an acknowledgement or error message. Clear? So a TFTP session is initiated when TFTP client sends a request. So ये देख सकते हैं आप लोग. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रोल एंड डेटा दोनों आपका सिंगल पाथ पे आ रहा है, जो कि FTP में ऐसा नहीं हो रहा था. FTP में क्या होता है, कंट्रोल और डेटा अलग अलग पाथ पे आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे सेम पाथ पे कम्युनिकेशन हो रहा है. ठीक है ना, कंट्रोल एंड डेटा बोथ. सो बिफोर गोइंग टू इनिशिएट द कम्युनिकेशन, पहले क्या होता है कि TFTP जो क्लाइंट है, क्लाइंट ये है, सर्वर ये है. ठीक है, तो दिस client exactly sends a request to upload or download a file from an ephemeral to UDP port, that is 69 of an TFTP server. तो जैसे ये UDP सर्वर है, इसका जो पोर्ट नंबर 69 है, उससे इस क्लाइंट ने अपने पोर्ट से कम्युनिकेट किया टू रिक्वेस्ट टू सेंड ए फाइल और रिसीव ए फाइल. क्लियर? सेंड और रिसीव दोनों. ठीक है, रिक्वेस्ट किया TFTP server. So when the request is received, the TFTP server picks an ephemeral UDP port of its own and uses this port to communicate with the TFTP client. Clear? So उसके बाद ये communicate करेगा क्लाइंट से. ठीक है, रिक्वेस्ट को रिसीव करने के बाद इस पोर्ट को यूज करते हुए. ठीक है, this thus the both client and server communicate using ephemeral ports as shown in figure. Clear? So this is a type of communication through TFTP protocol. Since UDP does not recover lost or damaged data, UDP is कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है, तो बेसिकली जो भी इसमें डेटा लॉस हो जाता है वो रिकवर नहीं होता है. क्लियर? क्योंकि इसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं है. तो TFTP रिस्पॉन्सिबल है चेंज TFTP transfer data in blocks of 512 bytes. Each block is assigned a 2-byte long sequence number and is transmitted in a separate UDP datagram. A block must be acknowledged before the next block can be sent. Clear?
जो एक ब्लॉक पहले ट्रांसमिट होगा वो एक्नॉलेज हो जाना चाहिए, मतलब वो कम्युनिकेशन एंड एक्नॉलेजमेंट इज नॉट रिसीव्ड बिफोर ए टाइमिंग एक्सपायर्स या टाइमर एक्सपायर, the block is retransmitted when the receiver receives a block that is less than 512 bytes long. It assumes that the end of the file has been reached. Clear? So this is the comparison of FTP and TFTP. So you can see this is the comparison. Okay, so this is the comparison between the file transfer protocol and ट्राइबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो ऑपरेशंस में देख सकते हैं दोनों ही फाइल ट्रांसफर के लिए यूज होता है। ऑथेंटिकेशन इज व्हाट एफटीपी में यस है, टीएफटीपी में नो है। मैंने आपको पहले ही बताया कि एफटीपी टीसीपी प्रोटोकॉल के लिए डिजाइन किया गया है ट्रांसफरिंग के लिए, पर टीएफटीपी आपका यूडीपी प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, दैट इज कनेक्शनलेस एंड वेल एज नॉट ऑथेंटिकेटेड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज देयर। देन एफटीपी में कंट्रोल एंड डेटा सेपरेट पाथ के थ्रू जाते हैं, कंट्रोल सिग्नल एंड डेटा सिग्नल। टीएफटीपी में हमारा सिंगल लाइन से होके जाता है। ठीक है, प्रोटोकॉल आपका यहाँ टीसीपी यूज हो रहा है, यहाँ यूडीपी यूज हो रहा है। पोर्ट्स आपके जैसे 21 एंड 22 20 यूज हो रहे हैं। 21 इज फॉर कंट्रोल सिग्नल ट्रांसमिशन, 20 फॉर डेटा ट्रांसमिशन। यहाँ ये वाले पोर्ट यूज हो रहे हैं। ठीक है, ये रिलायबल है, ये अनरिलायबल है। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हेलो, क्लियर है सभी को? यस सर। ये डिफरेंस पेपर में पूछा जाता है, एफटीपी एंड टीएफटीपी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एंड व्हाट इज, जैसे कि एफटीपी क्या होता है, हाउ द कम्युनिकेशन इज डन। ठीक है, मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन टीसीपी प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। दो पाथ होते हैं, कंट्रोल सिग्नल के लिए, डेटा सिग्नल के लिए। ठीक है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में डेटा कम्युनिकेशन होता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं। ठीक है, और ये डिफरेंस हो गया। Is it clear to all of you? So I am going to end the lecture over here. Most of the students have got exited right now. So we will continue from this onward. Hello. Yes, sir. Okay. Yes, So sir. most of the students have got exited. So I will continue from this point to the next lecture. So thank you very much. And I think all of you have marked your attendance as well. Okay, so ठीक है फिर, thank you very much.